عجائب تجدوانا لکاف النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم موالیان حیدر کرار رضاداران امام مظلوم محبت آل محمد میں کٹھے ہیں۔ ہمارے ان اٹھے ہوئے کمزور ہاتھوں کو، ہمارے آئے ہوئے قدم قدم کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات کریمی فرما ہم پہ، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، کربلا بار بار ہمیں یاد کروانے حقیقت آتی ہے۔ کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ نہیں، ہماری جرت ہی نہیں، ہم چل نہیں سکتے، ہمیں آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، جو ہمارے حر بننے میں رکاوٹ ہیں، وہ معاف فرما۔ ہم جو مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا کر۔ پروردگار عالم سادات و مومنین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک ہو کر، نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ ہمارے اندر جو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں، چھوٹے چھوٹے معاملات، خصوصاً عقیدوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے، پروردگار جو سلمان نے عقیدہ رکھا تھا اپنے اندر، ہمیں بھی عقیدہ اپنے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کردار سے ہمیں اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کردار اتنے کمال ہو جائیں میرا مالک کہ ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی کے غلام ہیں، غیر ہمیں دیکھ کے کہ یہ علی کے غلام ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے ورثاء جہاں جہاں دفن ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کبھی ممبر پہ نہیں کہتا کہ پروردگار ہمارے ان ذکر کو قبول فرما، میں نہیں کہتا، کیونکہ پروردگار کا نمائندہ مہدی قبول نہ کرے تو ذکر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ یہ میں بتاتا جاؤں، یہ نعرہ بھی ہمارے مجالس کی جلوسوں کی زینت ہونا چاہیے۔ یا امام المنتظر، اے انتظار کرنے والے امام، ہم تجھے کہہ رہے ہیں الاجل، جلدی آ، ہم تیرے منتظر ہیں۔ آج ہم کہیں گے نا مولا تو جلدی آ، جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیری قبر پہ کہے گا تو جلدی آ۔ شاباش۔ اس لیے اپنے امام کو الاجل کی صدا کے ساتھ اپنی وفا کا یقین دلایا کرو۔ اچھی بات ہے، ہم ریت جو سردار کی ہے، ہم کھاتے جو صدقہ سرکار کا ہے۔ معصوم کا فرمان نہیں سنا؟ مولا فرماتے ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے، جس کا کھاؤ۔ شاباش۔ یا امام المنتظر، اس کا قطن مطلب یہ نہ سمجھیے گا ابھی اسد بخاری صاحب لاہور سے آئے ہیں، سید ہمیں پریشان کر کے چلے گئے، ہم امام زمانہ کو پکارے مولا جلدی ہم علی کو بھول جائیں۔ نہیں، اس دور میں علی کے چہرے کو قائم کہتے ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں۔ علی کا چہرہ بھی یہی ہے، حسن کا چہرہ بھی یہی ہے، حسین کا چہرہ بھی یہی ہے، یہی سردار سارے گھر کا چہرہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں بھی غلط نہیں، عباس کا چہرہ بھی یہ ہے۔ شاباش۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین،
یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، متوجہ رہنا۔ میری کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جب بھی میں جہاں بھی میں خطاب کروں بادشاہ کے نام ضرور پکارتا ہوں۔ وقت امام جو ہیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے سردار کے کتنے لقب ہیں۔ دوسری بات، کسی وقت بھی کعبے سے کسی بھی نام سے صدا بلند ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، میری نسل کو، میرے بچوں کو پتہ ہو، باہر کو پوچھے اوئے تم کون ہو، یہ کہیں ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے۔ شاباش۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد۔ بڑی پیاسی روحیں نظر آ رہے ہو امام زمانہ کے معاشق کو، کیا بات ہے۔ تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی العرض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین۔ میں نے تجھے کہا معراج المومنین، مومنوں کی معراج۔ میں سمجھا نہیں پایا، پہلا آپ کے علاقے میں میرا پروگرام ہے، لیکن میں پہچان گیا، روحیں بڑی کمال ہو، معیار سماعت بھی تمہارا بڑا کمال ہے۔ پہلا ہی جملہ دینے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب، میمن صاحب، صاحب و زمان آپ سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ اچھا میں بتاؤں، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے ممبر حسین کی عظمت کی قسم، جب اللہ راضی ہوتا ہے پیسے مل جائیں نہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ پیسے ویسے ہی دیتا ہے، کوٹھیاں مل جائے اللہ راضی نہیں ہوتا، مال مل جائے اللہ یہ ویسے ہی دیتا ہے۔ یہ بھوسا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے بندے کو مہدی ملا دیتا ہے۔ شاباش، بہت اچھے بھائی، زندہ باد بھائی۔ کیا بات ہے، سلام، مہربانی۔ بڑا مشکل سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے راضی ہو جائے پھر اس کو اپنی حجت ملا دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی دنیا کوششیں کرتی ہیں حجت کو۔ میں سرکار کے لقب پڑھ لوں، میں پھر آتا ہوں۔ معراج المومنین، تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیروں پر یعنی آسمان پر اللہ سے ملاقات کے لیے جائے، اسے معراج محمد کہتے ہیں۔ ایک وقت 14 محمد کٹھے ہو کر مومنوں کو زیارت کریں، مومنوں کی معراج کہلاتا ہے۔ شاباش، شاباش بھائی، شاباش بھائی، شاباش بھائی، زندہ باد۔ معراج المومنین، معز المومنین، مومنین کو عزت دینے والا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی کرنا پڑا، ہر دور میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو ذہن کے بیمار ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا ڈسٹرب کرتے رہتے، کوئی بات نہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی شامل ہو جائیں گے قافلہ حسینی میں۔ جب سمجھ آگئی پوری کائنات قافلہ حسینی میں شامل ہو جائے گی، اور ہو بھی رہی ہے آہستہ آہستہ۔ بس تھوڑے سے تم لوگ اپنے کردار کمال بناؤ، لڑائی جھگڑے ختم کرو، میرا عقیدہ وہ، میرا عقیدہ وہ، تیرا عقیدہ وہ، یہ عقیدوں کی جنگیں ختم کرو۔ تیرا عقیدہ بہت اچھا ہے، سنبھال کے رکھ، زبان سے بیان نہ کر، کردار سے بتا سلمان کسے کہتے ہیں۔ شاباش، شاباش،
शाबाश, जिंदाबाद। मैं कहता हूँ बाबा अपने अकीदे किरदार से बता अली के नौकर का मिजाज कैसा है। ये क्या मैं अली को ये मान, बिस्मिल्लाह, तो अली को मान जितना तू मान सकते हैं, मान जितना तू मान सकते हैं, मान। सलमान का बराबरी तो नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो कम से कम खुशबू सलमान तो पैदा कर। तुम एक हो गए ना, इंशाअल्लाह हो भी रहे, कोशिश कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, सैयद है, दवा भी दे रहे हैं, खाली दुआ नहीं। इंशाअल्लाह सब एक हो जाओगे। जब एक हो जाओगे बाकी मखलूक देखेगी, यार ये अली वाले ऐसे होते हैं तो फिर इनका अली कैसा होगा। फिर इंशाअल्लाह तेरा सरदार आ जाएगा, तेरा आका आ जाएगा। मैं आज कर रहा था मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मोमिनीन को इज्जत देने वाला, तो इसलिए तुझे आज कर रहा था कोई अगर तंग करे, कोई डिस्टर्ब करे, परेशान न हुआ कर। कोई तुझे गलत कहे, उधर ही खड़ा होके हाथ उठा के दुआ मांगा कर, परवरदिगार ये भी तेरी मखलूक है, भूल गया, इसको हक समझ लिया, एहसान फरमा, मैं मोमिन होके हाथ उठाता हूँ, इसके दिल में हक उतार दे। इंशाअल्लाह इज्जत देने वाला सरदार आएगा। शाबाश शाबाश। बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा। इस मुकद्दस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुलजनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, नबियों का वारिस, सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गदीर का अपने नाना की खूबसूरत तरीन जुल्फों का वारिस, जमजम का वारिस, सफा मरवा का वारिस, मक्का का वारिस, मदीना का वारिस, करबला का वारिस, नजफ का वारिस, सामरा का वारिस, कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्कीनों का वारिस, गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका खास वारिस। 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। अच्छा, पहली बात करने लगा हूँ, दरूद वो पढ़ा करो जो किताब है तुम्हारी हदीयतुश्शिया, तुम्हारे मासूम ने तालीम फरमाया। तुम्हारे में फरमाते हैं जो गैबत में हमारा चाहने वाला इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। फरमाया अल्लाह उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं देगा जब तक महदी को न देख ले। इसलिए मिल के दरूद पढ़ो सरकार की बात। बच्चा माशाल्लाह बड़े खूबसूरत शेर पढ़ रहा था, आप भी सुन रहे थे, 4 मिसरे मेरा दिल बन गया, मैं भी सुनाता। उर्दू के बड़े कमाल मिसरे हैं, बहुत कुछ छुपा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हुक्म खुदा से पर्दा हटाया जाएगा जाएगा। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, डॉक्टर साहिब ज़मान सलामती, ईमान की सलामती, सेहत की सलामती अता फरमाए। बड़ी बात है आपके समझने को, ये जाएगा का जब आपने लफ्ज़ बोला है ना, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। जाएगा, खाऊंगा, पीऊंगा, पहनूंगा, उठूंगा, हर चीज जो गा है ना, ये मुस्तकबिल है, जिसको फ्यूचर कहते हैं। नहीं, हम सब बैठे हैं करबला वालों की याद मना रहे हैं। करबला हो चुकी, सिफीन हो चुकी, खैबर हो चुकी, ये हम सब माजी की बातें बैठे कर रहे हैं। होर ने ये किया था, हबीब इब्न मज़ाहिर आया था, जॉन ने अपने आप को पेश किया था, मौला ने करबला में डेरा लगाया था, अली अमीर अल मोमिनीन सलमान को आशिक बनाया था, मैं सब आशिक बना था। ये हम सब लोग
माजी की बातें बैठे कर रहे हैं, बस यही रोक के एक मिसाल देने लगा हूं। डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे को यहाँ स्कूल दाखिल कराया। पूछने लगे, डॉक्टर साहब बच्चे को स्कूल दाखिल क्यों करा रहे हो? कहने लगे, इसका मुस्तकबिल अच्छा बनेगा, ये भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। जनाब अली आप अपने बेटे की शादी क्यों कर रहे हो? कहने लगे, नस्ल बढ़वाऊंगा। हर चीज में गा है, गा है। बड़ा अहम पैगाम है, बड़ी दूर से इमाम ने नौकर को भेजा है तुम्हारे तक, बातें ज़ाहिर ना करना, तवज्जो करना। अरे भाई नौकरी क्यों करते हो? कहने लगा, तनख्वाह लूंगा। अरे भाई कारोबार क्यों करते हो? कहने लगे, मुनाफा लूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, घर बनाऊंगा, माल बनाऊंगा। हर चीज में गा गा गा। फिर मेरा सवाल है, इमाम ज़माना तुझे अपने दादे की पूड़ी पे क्यों बुलाता है, क्यों बिठाता है? सवाब की खातिर नहीं, सवाब सिर्फ तू इस घर पे दरूद पढ़, जितना चाहे तुझे सवाब मिल जाएगा। तुझे सवाब की खातिर नहीं बुलाता। अगर तू इस नियत से आता है, हुसैन की मजलिस में जा रहा हूं, मौला मुझे जन्नत देगा, घबराना, जन्नत इतनी सस्ती, इतनी सस्ती। फरमाया, जिस बंदे के दिल के अंदर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत होगी, वो जहन्नम नहीं जाएगा। फिर सोच सही, तेरा सरदार तुझे यहां बुलाता क्यों है? कोई राज है ना? न सवाब की खातिर, न जन्नत की खातिर। फिर सोच, हर काम में तू कहता है गा, खाऊंगा। अरे भी रात को क्यों सो रहे हो? मैं सुबह उठूंगा। सुबह क्यों उठे हो? मैं काम पे जाऊंगा। यानी मुस्तकबिल, हर बंदे की कोशिश है मुस्तकबिल अच्छा हो। अब जो मैं बात जहां ले आया हूं, समझा समझा के सुन। तकरीर का पहला निचोड़ है, यहीं से मैं फैसला करूंगा मैंने पढ़ना क्या है। तुझे इमाम ज़माना दादे की मजलिस में बुलाता क्यों है? सवाब मसला नहीं, जन्नत भी मसला नहीं, बुलाता क्यों है? सिर्फ एक वजह है, कायम भी चाहता है वहां से नौकर इकट्ठे हों, मैं इन्हें भी हुर बनाऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तू भी इस नियत से आया कर, मैं भी हुर बनूंगा, मैं भी अपने इमाम का। क्यों? वो हुर अलैहिस्सलाम है, उसका मुकाबला किसी से नहीं। जॉन अलैहिस्सलाम है, सलमान अलैहिस्सलाम है, इनके मौला अलैहिस्सलातो वस्सलाम है। ये अलैहिस्सलाम है, क्यों ना कहें हम अलैहिस्सलाम, जब हुसैन इन पे सलाम करता है। ओए होए, पूरी कायनात कहती है सलाम या हुसैन। मेहरबानी जनाबी, पूरी कायनात कहती है सलाम या हुसैन। हुसैन आशिकों को कहता है मेरा तुम पे सलाम। वो मिजाज मामूली नहीं, को किरदार मामूली नहीं, मामला मामूली नहीं, अलैहिस्सलाम है। ये सब कहते हैं हम तो अलैहिस्सलाम हैं, तू बता तू क्या है? बस हमने इसी चीज से असर लेने, हमने अपने लिए वो मकाम लेना है जिस पे हमारा इमाम हमें देखना चाहता है। और तेरा मकाम डबल हो सकता है, डबल मातली है ये नजर, ये तेरा मकाम डबल हो सकता है। बेशक सलमान का मकाम बहुत बुलंद है, मगर तेरा मकाम सलमान से भी बढ़ सकता है। दावा करने लगा हूं, जाऊंगा नहीं दलील दिए बगैर, यहीं खड़ा हूं, मैदान का बंदा हूं। ये नहीं कि मैं इधर बैठ के बात करूं, मैदान में करता हूं और मुस्बत करता हूं। मेरे अंदर जर्रा बराबर भी किसी के लिए नफरत नहीं, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। कोई अगर है तो मोहब्बत का कोई असर होगा, कोई जज्बाती ज्यादा होगा तो होगा, बिस्मिल्लाह मौला करेंगे, खैर हो जाएगी। बड़ी दुनिया कहते सैयद जा मिंबर पे उसको गलत कहे, उसको गलत कहे, उसको गलत कहे, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं कहता हूँ क्यों गलत कहूँ? क्यों? मैं मानता हूँ उस हुसैन को जिसके बेटे ने आना है, ये उसका बेटा है जो एक आम को हुर बना देता है। जिसको आज मैं गलत कहूँ, कल को आने वाला हुसैन उसे हुर बना दे, मैं क्या करूंगा? शाबाश, ये इसमें भी तेरा पैगाम था, अगर तू समझ जाए, सुनता जाए, दिल में बिठा ले। इसमें भी मैसेज है तेरे लिए, जिंदाबाद। इसमें भी क्यों गलत कहे, आने वाला हुसैन उसे हुर बना दे, मैं क्या करूंगा? ये तेरी सिफत है, तू मुस्बत रहे, नेगेटिविटी खत्म कर, मनफीपन खत्म कर, मुस्बत रहे। ये मोमिन का कमाल है, मुस्बत रहे। तेरी जबान गालियों के लिए नहीं बनी, अली अली करने के लिए। होय 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 होय, मेहरबानी।
تیری زبان کمال، تیرے کان کمال، تیرا شکم کمال، تیرے ہاتھ کمال. کبھی غور تو کر. میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں، میں واپس آتا ہوں. زبان تیری غیبت کے لیے نہیں بنی، گلوں کے لیے نہیں بنی، بدخوئیوں کے لیے نہیں بنی. تیری زبان اس گھر پہ درود پڑھنے کے لیے بنی ہے. اس زبان کو سنبھال. تیرا ہاتھ سب ہاتھوں جیسا نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ خوش نصیب ہے جو ہاتھ علم عباس کو اٹھاتا ہے. شاباش شاباش. جو ہاتھ علم عباس کو اٹھاتا ہے، اس ہاتھ کو سنبھال. پھر یہ ہاتھ کسی گندی جگہ پہ نہ جائے، حرام پہ نہ جائے. اس ہاتھ کو بچا. یا علم عباس نہ اٹھا. ہوئے 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 ہوئے. بڑا جملہ کہہ گیا میں. حیدری یا علم عباس نہ اٹھا، یا علم کو بوسہ نہ دے، یا کم از کم اس ہاتھ کو پھر حرام پہ نہ جانے دے. یہ تیرا کمال ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کوشش کر کسی مظلوم پہ بھی نہ جائے. اس ہاتھ کو سنبھال. یہ تیرا پیٹ عام پیٹ نہیں. جس پیٹ میں سبیل حسین کا پانی کا قطرہ جائے، جس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ جائے، وہ حرام نہ جائے. شاباش شاباش شاباش. یہ تیرے ضروری کام ہے. اگر تو یہ نہ کر پایا، بس پھر دنیا سے ایسے ماتم کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. مثال نہیں بنے گا. تجھے مثال بننا ہے. تجھے اپنے امام کا وہ سپاہی بننا ہے جس کا امام انتظار کر رہے ہیں. جب تک تیرا کردار کمال نہیں ہوگا تو وہیں کا وہیں کھڑا رہے. بڑے آسان الفاظ میں تجھے سمجھا. میں نے تو تجھے ایک بات کی ہے، دعویٰ کی ہے. تیرا مقام سلمان سے بھی بڑھ سکتا ہے. ممبر پہ کھڑا ہوں، دلیل دینے لگا ہوں. تیرا مقام کربلا کے عاشقوں سے بھی بڑھ سکتا ہے. بھلا کیسے؟ اگر تو ان عاشقوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا مقام پہچان لے، اپنی آنکھیں حیا میں مضبوط کر لے، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ، اس زبان سے کوئی گالی دے کسی کو کچھ نہ کہے، اس ہاتھ سے کسی کو کچھ نہ کہے، خوبصورت عبادت گزار بن، کبھی کسی کو کچھ نہ کہے. تیرا مقام امام کے ظہور پہ اس سے بڑھ جائے گا. ناممکن نہیں. اب میں خطاب کر کے چلا جو ڈاکٹر صاحب سے لوگ کہیں بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے سید کو لاہور سے بلوایا، ہمیں ذکر سنا کے چلا گیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی غیبت میں کیسے ماننا ہے. غیبت میں ماننے کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں آپ سب کے سامنے بڑا اچھا بنوں گا، موبائل میں پاکیزہ رکھوں گا، میرے سامنے کوئی عورت آئے گی میں آنکھیں ادھر کر لوں گا. بھئی یہ سب کہیں گے سید ادھر ادھر دیکھتا ہے. تیرا حیا کروں گا. تم میں سے کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا ہوں، میں نے امام کا حیا کر لیا، میں نے غیبت میں مان لیا. اپنی مثال رکھ کے میں نے دیا. شاید میں پیغام تو بھئی کیا بات ہے بھئی، سلام ہے بھئی، کمال ہے بھئی. میں نے اکیلے میں امام کا حیا کر لیا. میں نے اپنے امام کو غیبت میں مان لیا. اللہ اکبر. مشکل ضرور ہے، نفس مجبور کرتا ہے. نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج کر لے، کل ایک کام کر لینا. اللہ نے دو قوتوں سے ہر انسان کو نوازا ہے، ایک نفس، ایک ضمیر. نفس جب بچہ ہو، نفس چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. ضمیر کی حکومت ہوتی ہے. ہائے ہائے. اور ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. ضمیر کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں. نفس کہتا ہے یہ کر، ضمیر اندر سے ٹوکتا ہے نہ کر، نہ کر. نفس کہتے کوئی بات نہیں، کل معافی مانگ لیں گے. اندر سے ضمیر کہتا ہے ہو سکتا ہے کل آئی نہ. غیبت میں ماننا یہ معیار ہے. کا ٹریک بدل جائے گا جب دوسروں. ویسے بھی تیرے امیر المومنین کا فرمان ہے انا امام المتقین، میں متقین کا امام ہوں. بندے نے پوچھا یا علی متقی کون ہوتے ہیں؟ سرکار نے خطبہ دیا، آج بھی موجود ہے پورا خطبہ. کمال دیکھیے گا، سرکار نے جس کو خطبہ سنایا متقین پہ وہ سن کے مر گیا. ڈاکٹر صاحب پڑھنے والا خطبہ ہے، کمال ہے. سرکار نے سب سے پہلے فرمایا میرا متقی وہ ہے جو مخلوق خدا کے عیب بھی دیکھے پھر پردہ بھی رکھے. بھی تے بندے متقی نہیں بڑھ جانے نا، کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا. عیب دیکھ کے بندہ کہتا ہے
ये फलां, आओ इसका ऐब उठाएं और पूरी दुनिया में फैला दें। इमाम का एहसान दे, गहरा जुमला देने लगा हूं, जिस तक पहुंच जाए बिस्मिल्लाह, जिस तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं है, जुमला बड़ा है। मैं इमाम चाहते हैं मेरा मुत्तकी सिफत खुदाबंदी को पाले। मौला वो कैसे? वो भी तो ऐब देख के पर्दा रखता है। होए 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 होए, कितनी बड़ी सिफत है अल्लाह की। मखलूक के ऐब देखता है, पर्दा रखता है, ऐब देखता है, पर्दा रखता है। इमाम चाहते हैं अल्लाह की सिफत इनमें भी आ जाए, ऐसी आ जाए ये मखलूक का ऐब देखे, पर्दा रखे। मुश्किल काम है, नफ्स मजबूर करता है, जल्दी कर वीडियो बना, फैला दे। वो ये कह रहा था, वो उसको गालियां दे रहा था, वो ये गलत काम कर रहा था, वीडियो फैला दे। अंदर ज़मीर कहता है ना फैला, क्या करूं? ज़मीर कहता है उसके लिए दुआ मांग, उससे गलती हो गई, अल्लाह उसे माफ करे। ये है डॉक्टर साहब मामला, है मुश्किल। अल्लाह जिनसे राजी होता है उनका बयान कुछ और होता है। अल्लाह का रजा लेना, अल्लाह की रजा लेना, अल्लाह का राजी होना बड़ा जरूरी है। यही काम करबला वालों ने किया। अल्लाह इनसे राजी है। कितना राजी है? मासूम फरमाते हैं ये वो है, मैं रसूल के फरमान, मासूम के फरमान करबला वालों पे पढ़ बैठा हूं। फरमान है कि ये वो है, कयामत के दिन सारे शुहदा एक तरफ, करबला वाले एक तरफ। क्या कमाल है इनका, क्या कमाल छुपा है। बस ये कमाल सुन, इसी का नचोड़ दो जुमले मसाइब, इतना ही काफी, इतना ही संभाल ले, बड़ी बात है। तेरी तवज्जो रही, मैं आता जाता रहूंगा, बल्कि मैं क्या आ जाऊंगा, मेरा इमाम मुझे भेजेगा। और अगर तूने लिया कि भाई वो भी ठीक पड़ गया, वो भी ठीक पड़ गया, तो फिर सारे तो माशाल्लाह ठीक ही पढ़ते हैं ना। तब्दीली आनी चाहिए। काफी अर्सा गुजर गया, अब सरदार को आना चाहिए, सरदार के आशिकों का मयार बदलना चाहिए। अब बादशाह को कितना अरसा गैबत में बिठाए रखेंगे, वफा का यकीन दिलाना चाहिए ना। बादशाह आओ, अब तो हम आपके मुंतज़िर हैं, आपके बगैर तो अधूरे हैं, हमारे मिंबर अधूरे। मुझ जैसे कई पढ़ने आते हैं किताबें पढ़कर, महदी वो सुनाएगा जो हक है। ओए होए 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 होए, शाबाश शाबाश, अल्लाहु अकबर। सरदार वो सुनाएगा जो हक है। हम आते हैं करबला, तुम्हें सुना के चले जाते हैं। हमने किताब मुझसे करबला पढ़ी, महदी देखी हुई करबला सुनाएगा। आता हूं मैं मसाइल पे, सिर्फ एक या डॉक्टर साहब सिर्फ एक लम्हा मुझे दे दीजिएगा, मैं मसाइल पे आता हूं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मोमिन का दिल नरम है ना, फौरन अजीब कैफियत हो जाती है। करबला वालों, तुम इस मयार पे पहुंचे, तुम अल्लाह के खास बंदे हो, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम्हारा कमाल क्या था? कहने लगे देखो जरा गौर करना, समझो, क्योंकि तुम खुद नारा लगाते हो है हमारी दर्सगाह, तो दर्सगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश। करबला वाले कहते हैं हमसे दर्स लो, सिर्फ सुनो नहीं, हमारी बातों को हलक से नीचे उतारो, हमारी बातों पे गौर करो। अच्छा करबला वालों दर्स दो ना। करबला वाले कहते हैं देखो हमने तुम्हें दर्स दिया है, हमारा सरदार जो हमारे दौर में अल्लाह की हुज्जत थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जमीन बाकी हो अल्लाह की हुज्जत ना हो, बेबकाए बकियत दुनिया, अल्लाह की हुज्जत का होना बहुत लाजिम है। क्यों? अगर शैतान को छुट्टी है खुली वक्त मालूम तक, तो बचाने वाला ना हो तो बंदे कह सकते हैं महशर के दिन भटकाने वाला तो भेजा, बचाने वाला नहीं भेजा। बड़ी तफसील और तवील गुफ्तगू इसमें भी हो सकती है, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, इशारा दे गया मैं तुझे, तूने गौर करना तेरा काम है। करबला वालों हमें दर्स तो दो, बहुत सारे दर्स में एक दर्स। करबला वाले कहते हैं अल्लाह ने अपनी हुज्जत हमारे दौर में इमाम मजलूम की शक्ल में भेजी। हमारा सरदार बड़ा करीम था, इतना करीम था कि तुम्हारी सोचों से भी बड़ा करीम था। अच्छा तुम्हारे सरदार से तुम्हारा मामला कैसे आया और तुम कमाल पे कैसे पहुंचे? कहने लगे देखो हमारे सरदार ने हमें एक मरहले से गुजारा, हुज्जत तमाम की उसने हमसे। कैसे? जब 10 मुहर्रम की रात आई ना, पहले तो जितने पीछे वाले थे जो आशिक थे, ऐसा ऐसा छांटी होती होती होते होते थोड़े बच गए,
छांटियां हो के बंदे चले गए। ये भी डॉक्टर साहब मिंबर पे बताने वाली बात नहीं है, फिर लोग दूसरे पकड़ लेते हैं कि हुसैन का साथ देने वाले छोड़ क्यों गए थे। लेकिन क्या करे, तारीख है, मजबूरी है। मैं फिर इस पे तफसीली बात करूंगा, लेकिन जो बात बतानी है वो है कि 10 मुहर्रम की रात हुई, सबको हुसैन ने बुलाया। सरदार फरमाने लगे, देखो ये जदीदी फौज जो है ना, ये मेरी जान की दुश्मन है, मेरी जात की दुश्मन है, ये मुझे मारना चाहते हैं। मेरा दिल है मैं तुम्हें छुट्टी दूं, चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूं, चले जाओ। चिराग जल रहा था, तेरे इमाम ने जलता हुआ चिराग बुझवाया। जो जाना थे सरकार फरमाने लगे, चले जाओ, मैं बैयत भी वापस लेता हूं। पहले मखलूक इमाम के हाथ पे बैयत करती थी, हुक्म आज भी है दिल तो बताता जाऊं। आज भी हुक्म है, सुबह सुबह उठ, पहले बिस्तर पे उठ पे काबे की तरफ रुख करके सलाम कर, अपने इमाम को कह अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। पहले इमाम को सलाम कर, फिर इमाम से बैयत कर। दायां हाथ इमाम का हाथ समझ, बायां हाथ अपना हाथ बाएं के ऊपर दायां रख। इमाम तेरे से बैयत करता हूं, सारा दिन गुनाह नहीं करूंगा, तेरे इंतजार में गुजारूंगा। बैयत आ गई तो दरमियान में मैंने कहा मोमिनों को बताता जाऊं। तब बैयत कर, किस तरह? दाएं हाथ को इमाम का हाथ समझ, बाएं हाथ को अपना बाएं के ऊपर दायां रख। मौला तेरा होना नहीं भी हूं, बना ले। मौला तेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। खुदा की कसम, जब बंदे से अल्लाह राजी हो जाता है, इसका मतलब जमाने का ईमान भी राजी होता है। तो कमाल ये है, बंदा गुनाह के करीब नहीं जाता। मैंने लंदन एलिवेट टीवी में बैठ के पूरी दुनिया प्रोग्राम सुन रही थी, मैंने वहां प्रोग्राम में ऐलान किया, मैंने कहा हो नहीं सकता इमाम राजी हो, बंदा गुनाह के करीब जाए। ये जो हम गुनाह के करीब जाते हैं, कहीं ना कहीं नाराज होते हैं बादशाह। वरना बादशाह राजी हुए, गुनाह हमारे करीब नहीं आ सकता, हम गुनाह के करीब नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने इन्हें रिजस से दूर किया, आले मोहम्मद कहते हैं हमारे आशिक रिजस से दूर। बड़ी मुश्किल सी बात थी, मैं कर गया। तेरे हाथ उठाने का शुक्रिया, तवज्जो करना, मैं बात मुकम्मल करूं। कहा बैयत कर रोजाना, और अपनी बैयत पे कायम रहे, मजबूत रहे। अगर कहीं शैतान तुझे झटका दे, हालांकि शैतान अंदर का नफ्स है जो तुझे झटका देता, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, फिर इमाम भी है अंदर, उसकी मान, उससे मदद तलब कर। गुनाह पे ज़हन बिल्कुल जुड़ जाए, कोई भी देखने वाला ना हो, फौरन तलब कर। अल्लाह अब्बास तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मौला मेरा दिल ज़हन गुनाह पे तुल गया, क्या करूं? अल्लाह ने तेरे कायम की सूरत में हुज्जत जमीन पे रखी है, एहसान फरमा, कायम को कहे मुझे बचा ले। बचते जाओगे, करम बढ़ता जाएगा, रहम बढ़ता जाएगा। बहरहाल बात रह ना जाए, बहुत सारे इशारों में मैं बहुत कुछ कह गया तुझे। गंज दे के जा रहा, गंज भूले ना, तब्दीली आए। हाँ, मुझे नहीं खाली लौटा रहे, इमाम के पैगाम को, वरना खाली लौटाओगे। मैं बादशाह का मैसेज लेके आया हूं तुम्हारे तक, काबू संभालो। ये नहीं कि बड़े अच्छा पढ़ गए, नहीं, अहद करो आज हुसैन के मजलिस में, आज के बाद हुसैन ये जिस्म का हिस्सा, आंखें, कान, मुंह, पेट, हाथ, ये सब तेरे कायम के लिए वक्फ है। मौला हम बन के दिखाएंगे जैसे तेरा बेटा हमें देखना चाहता है। यही तो तेरा सरदार कहता है, हमारे चाहने वालों मुझे तलाश करने की कोशिश ना करो, तुम वैसे बनो जैसे हम चाहते हैं, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। ओए होए 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 होए, मैं तुझे मिलने, बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊंगा। मिजाज बदल ले, किरदार बदल ले, मैं तुझे मिलने खुद आऊंगा। मुहिब नहीं बनना, शिया बनना है। यही तो चीजें तुझे शिया बना देंगे। यही जो मैं तुझे इतनी देर से अर्जियां कर रहा हूँ, यही चीजें तुझे शिया बना देंगी। अभी तक हम मुहिब हैं, शिया नहीं है। मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम जितने बैठे हो, ख़ुसूसन जवानों, मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ। हम अभी मुहिब हैं, शिया नहीं है। तेरे 11वें इमाम से पूछा गया था, मौला मुहिब और शिया में फ़र्क है? इमाम फरमाते हैं हाँ, मुहिब और शिया में फ़र्क है। मौला क्या? फरमाते हैं मुहिब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं।
बिस्मिल्लाह। मुहिब वो जो हमें चाहता है, शिया वो जिसे हम चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम सब ने शिया बनना है। शिया कोई उसका नाम नहीं, मकाम का नाम है, मर्तबे का नाम है। और अहले सुन्नत भी मकाम और मर्तबे का नाम है। बताऊं अहले सुन्नत किसे कहते हैं? बताऊं? कोई सुन्नी में बैठे हो तो संभालना बात। सैयद की बात आ गई, पता नहीं क्यों डॉक्टर साहब से मोहब्बत इतनी हो रही है, कमाल बंदे हैं। तवज्जो करना, जुमला आ गया तो देता जाऊं। हम सब ने इंशाअल्लाह शिया बनना है। सुन्नी किसे कहते हैं? अहले सुन्नत कौन होता है? अहले सुन्नत यानी जो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते हुए पत्थर खा के दुआ दे। ओए होए 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 जो पत्थर खा के दुआ दे। मुश्किल काम है डॉक्टर साहब, पत्थर खाना। यहाँ बंदे गालियों पे मार देते हैं। पत्थर खा के दुआ देने वाले को सुन्नत का अहल कहते हैं। आप भी अहल हो ना? इंशाअल्लाह आप भी अहले सुन्नत है बाबा। पत्थर खा के दुआ देनी है ना, रसूल की सुन्नत है ना बाबा। तबीयत घबरा तो नहीं गई? कल को आपके इलाके में कहें जी आपके सैयद आए थे, खतीब आए थे, वो कहने लगे आप भाई जिंदाबाद। लो जी बस मैं ना छोड़ते खिदमत में पेश करो दो जुमले मसाइब और इजाजत। मैं बहुत पड़ गया, इतना ही संभाल ले तो बड़ी बात है। सरदार क्या फरमा रहे हैं? मैं राजी भी हूं, मैं बैत भी वापस लेता हूं। तीसरा जुमला तेरे इमाम ने एहसान फरमाया। सरकार फरमाते जो जन्नत से चला जाए मैं जन्नत की जमानत भी देता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। साहिब मवाइज़ हसना जो मुहक्किकीन हैं उनके लिए दावत फिक्र किताबों के नाम बता रहा हूं। रियाजुल कुद्स, मवाइज़ हसना, अल्लामा अब्दुल अलहिरवी तेहरानी, अल्लामा दरबंदी असरार शहादा, ये 3 किताबों के हवाले मैंने मिंबर पे दे दिए। सरकार ने जब फरमाया ना चिराग बुझा के जो जाना चाहे चला जाए मैं जन्नत भी देता हूँ। जितने जन्नत के मुतलाशी लालची थे उन्होंने कहा उठो उठो बाबा चले। जो चीज हमें मरने के बाद मिलनी है सरदार अभी दे रहे हैं, उठो चलो। कुसर फुसर करके काफी 3000 से कुछ ज्यादा लोग चले गए। बच गए खालिस, बच गए विलायती, बच गए लालच से बेनियाज, बच गए मुखलिस, बच गए इबादत गुजार, बच गए वो जो सौदा करने वाले नहीं थे। उनसे तेरे सरदार पूछते तुम क्यों नहीं गए? छुट्टी तो मैंने दी थी, तुम क्यों नहीं गए? सबसे पहले एक बूढ़ा आशिक हुसैन खड़ा होकर अर्ज करता आका एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा कत्ल कर दिए जाएं, फिर जिंदा किए जाएं, फिर भी तेरे। आका तुझे छोड़ के नहीं जा। एक और आशिक खड़ा हो गया, सरदार ये फरमाइए इंसान की आखिरी मंजिल क्या है? तेरे इमाम फरमाते मौत। सरकार के कदमों को हाथ रख के कहते हैं आका मरना तो बिस्तर पे भी है, मरना तो रोड पे भी है, हुसैन की जूती पे कुर्बान क्यों ना? अल्लाह अकबर। मैं बिस्मिल्लाह करूं। जब इन्होंने वफा का यकीन दिलाया सरकार ने अपना पाक हाथ दराज फरमाया, जबी ने अत्तर पे रखा, रख के फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह। इनाम है, बड़ी डिग्री है वली अल्लाह की। हाँ बस मैं बहुत बढ़ गया। अस्सलामु अलैका या औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियो तुम पर हुसैन इब्ने अली का सलाम। सरदार ने करबला की सरजमीन पर आशिकों को वली अल्लाह बना के आने वाली नस्लों को बता दिया हम तो जिसे चाहे वली अल्लाह बन। ये मयार है आशिकों का। लालचियों को छुट्टी, करबला लालचियों को कबूल नहीं करती। जाओ जहां से आए थे, जो चीज चाहिए जाओ। मैंने डॉक्टर साहब सुन्नत उलमा तशरीफ फरमाते, मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा सरदार हुसैन कौन है? कहने लगे सैयद शबाब अहल जन्नत। मैंने कहा सरदार है जन्नत के? कहने लगे जी जन्नत के सरदार है। मैंने कहा जिनको सरदार कह दे तुम जन्नत जाओगे, वो जाएंगे या नहीं? उन्होंने कहा जी वो जाएंगे। फिर अब मेरा सवाल है कौम शिया से, अगर हुसैन को छोड़ जाने वालों की मंजिल जन्नत है तो साथ जाने वालों की मंजिल क्या है?
होए 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 होए। ये है करबला का दर्स, ये है बाबा करबला का दर्स। साथ देने वालों की मंजिल क्या है? सरकार ने कहा कुछ मांगो, कहा का नहीं, तुझे ही मांगा है। अल्लाह से भी तुझे मांगा, मोहम्मद से भी तुझे मांगा, तेरे से भी तुझे मांगा। आका कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग। सरकार कुछ नहीं, सरकार सिर्फ एक गुजारिश है, ये भी सवाल नहीं है। सवाल नहीं जचता तेरी जात के साथ, इसलिए तुझे भी कहता हूँ हुसैन के जिक्र में गम में आया कर, एहसान ना लगाया कर हुसैन पे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मजलिस में आके मौला ये मेरा मसला हल कर, मैं तेरी मजलिस सुनने आऊं, नहीं, शुक्रिया अदा किया को हुसैन, तूने मुझे वहां बिठाया जहां 14 बैठे हैं। हुसैन पे एहसान ना लगाया कर, हुसैन का शुक्रिया अदा किया कर। सरकार सवाल नहीं अर्जी है, बस हमें अपने आप से जुदा ना करना। एजाज भी मैंने अभी तक ये जुमला नहीं कहा, डॉक्टर साहब की पता नहीं क्या अकीदत और यहाँ के मोमिनीन की अकीदत का क्या म्यार है, मैं जुमला देने लगा हूँ, संभाल के रखना। सरकार हमें आपसे जुदा ना करना। मैं खिताब करके चला जाऊँ, पीछे लोग डॉक्टर साहब के पास आ जाए कि सैयद एक नई चीज आज बता गया मेंबर पे, करबला वाले जन्नत नहीं गए, हुसैन के साथ है। हमें साबित करके दो, तारीख में किताबों में हुसैन के साथ कहाँ है। डॉक्टर साहब परेशान होने की जरूरत नहीं, जो कहे ना सैयद कह गया मेंबर पे कि इन्होंने मांगा था कुर्ब, हुसैन जुदा ना करना, इनको कहना आ मैं तुझे दिखाऊं कुर्ब। कहेंगे जी कहाँ दिखाएगा? कहना किताबों में नहीं, आ तुझे मैं करबला की मट्टी गौर से दिखाऊं, गौर से देख, जहां हुसैन है वहां 72 है। इन्होंने मांगा था कुर्ब, ये जुदा नहीं हुए, ये सरदार के साथ खड़े हैं। बस मैं बहुत बढ़ गया। एक नारा है, दूसरा उसका एक जुमला सुन और 2 जुमले बस आएगा। पहला नारा लगाता है हमारी दरसगाह, दूसरा नारा लगाता है हक का सीधा रास्ता। करबला करबला, हक का सीधा रास्ता। कभी हमने नारा नहीं लगाया हक की सीधी मंजिल, हमेशा कहा हक का सीधा रास्ता। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब रास्ते किस लिए होते हैं? डॉक्टर साहब कहेंगे सैयद मंजिल पे जाने के लिए। नारा है हक का सीधा रास्ता, करबला रास्ता है। करबला कहती है मुझसे गुजर, अपनी मंजिल महदी तक पहुंच। शाबाश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। यही अर्जी थी मेरी, यही गुजारिश थी। दुआ गो हूँ दिल से, मेरा मौला तुझे सच्चे सच्चे आशिकों में शुमार फरमाए। जितने भी आए बैठे हो खैर लेके जाओ, करम लेके जाओ, झोलियां भर के जाओ करम की, खैरात की। वो करम और खैरात जो तेरा हक है, जो तुझे मिलना चाहिए। पैसा करम नहीं, माल करम नहीं, ये तो कोशिश से वैसे मिल जाता है, क्योंकि ये वो करम है जिसको लोग करम कहते हैं। ये वो है जो कब्र के बाहर तक रहता है। करम तो असल ये है कब्र के बाद हो, जमाने का इमाम कब्र पे आके कहे उठ मैं आ गया। करम तो असल ये है। यही तो फरमाया गया, अगर इंतजार करते हुए मातम में, अज़ादारी में, नमाज में, चलते फिरते कारोबार में, काम में, घबराना ना। तुम्हारा पहला कदम वहीं होगा जहां तुम होगे, दूसरा कदम काबा में होगा। अगर मर गए, दुनिया से चले गए, घबराना ना, सब हाजिर मैयत कह के छोड़ के चले जाएंगे। घबराना ना, तुम्हारी कब्र पे महदी आएगा। दुआएं हैं, एक दुआ भी बड़ी मशहूर है, आपने सुनी होगी, हदीसे के साथ दुआएं को मैं माशाल्लाह पढ़ते हो, बड़ी अहम दुआएं हैं, खूबसूरत दुआएं हैं। मगर इन सब दुआओं में बहुत अहम दुआ है दुआए अहद। छठे इमाम ने तालीम फरमाई, सरकार फरमाते जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ मेरा महदी उसकी कब्र पे आए। वो दुआए अहद मफातिल जनान में मौजूद है। वैसे लाहौर वालों ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, तर्जुमा साथ है तुम्हारी सिंधी जबान में, उन्होंने वहां से प्रिंट करा के भेजा है, इसलिए कि तुम तर्जुमा जरूर पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। वो दुआ है वो फ्री बांटी जाएगी, जितनी कहोगे डॉक्टर साहब को दे जाएंगे। तब जो रखना, बस 2 आंसू उन मजलूमों के लिए जिनका रोने वाला कोई नहीं था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सीना हमारा अंदर छुपा हुआ दिल इतना नरम है, करबला की मिट्टी से गूंधा गया है। बात आए सही, हमारे आंसू झलक पड़ते हैं। लोग कहते हैं रोते क्यों हैं? क्या करें, मजबूरी है। हम जिसका कलमा पढ़ते हैं,
अल्लाह अकबर, उसके नवासी के साथ ये जुल्म हक बनता है। मैं एक वाकया पढ़ता हूँ, मेरा दिल है मैं वो सुनाता जाऊँ। अहले सुन्नत भी माशाल्लाह मुझे बड़े चेहरे लग रहे हैं ताकि इन तक भी पैगाम पहुंच जाए। तेरा इमाम मजलूम मदीना से चला, चलते हुए तेरा सरदार ईसाइयों की बस्ती के करीब पहुंचा। काफिला बस्ती के आगे से गुजर रहे, बड़ा खूबसूरत काफिला है, सारे वैसे हैं जैसे मदीने से चले थे। दरमियान में महमल हैं, महमलों पे पर्दे लगे हैं, मोहम्मद की बेटियां पर्दों में सफर। बाहर बैठी एक नसरानी औरत, ईसाई औरत काफिले को देखती है, बड़ा जाहो जलाल वाला काफिला है। फिर महमल देख के कहती है पता नहीं क्या मजबूरी बन गई है, मस्तूरात के साथ सफर में। अंदर इसकी बहू है, 4 दिन पहले शादी हुई, बेटे का नाम वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। ये वो खुश नसीब है जो करबला का शहीद है, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। 24 ज़िलहज को शादी हुई, 28 ज़िलहज को इमाम का काफिला गुजरा। अंदर से बहू आवाज दे के कहती है अम्मा लगता है कि काफिला गुजर रहा है, शौहर मेरा पानी लेने गया, पानी नहीं है, प्यासी बड़ी हूं, हो सके तो इस काफिले से पानी तो मांगा। दरवाजे पे बैठी हुई माँ आवाज देकर कहती है दरमियान में आया तेरे इमाम का मुर्तजिस, कहती है सफेद घोड़े का सवार, कोई पानी हो थोड़ा पानी देते जा। तेरे इमाम ने अपने रहवार का रुख मोड़ा, रुख मोड़ के उसके दरवाजे पे पहुंचे। तेरे इमाम दरवाजे पे पहुंच के मोजिज नुमा ने नेजा मारा, नीचे से पानी का चश्मा बरामद हुआ। नसरानी औरत है, ईसाई हैरान होके कहती है तारफ पूछने की जरूरत नहीं, मोजिज नुमा हो, लेकिन नाम तो बता दो। सरकार फरमाते मेरा नाम है हुसैन इब्न अली। मेरा दिल चाहता है थोड़ी देर आप अंदर तशरीफ ले आओ, मेरा बेटा अभी आ जाता है, वो भी आपकी कदम बोसी कर लेगा। सरकार फरमाते हैं बुढ़िया मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने करबला पहुंचना है, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ जब बेटा आए मेरा सलाम भी कहना और बेटे को कहना सरदार तेरा करबला में इंतजार कर। बेटा जो ही घर में आया रोते भी जाओ, इन मजलूमों के वारिस को भी बुलाते जाओ, क्योंकि तेरे जमाने का इमाम का फरमान है शियो जब करबला वालों का गिरिया बुलंद हो मेरे ज़हूर की दुआ किया करो, दुआ मांगो अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, उम्मत से आके पूछे मेरे घर वालों का, मेरे घर वालों के नासरों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। चला सरकार का काफिला, पीछे आया बेटा, हैरान है या पानी नहीं पूरी बस्ती में या चश्मा बरामद है। माँ क्या हुआ? माँ ने बताया एक मोजिज़ नुमा आया था, करीमी करके घोड़े का रुख मोड़ा, यहाँ नेजा पानी ये मामला। माँ कोई कहता भी था कुछ? कहा हाँ तुझे सलाम भी देता था, इतना मजलूम हो गया था इमाम, तुझे सलाम भी देता था और कह भी गया था जब वहाब आए ना बेटे को कहना तेरा इंतजार में करबला करूंगा। बेटा आवाज दे के कहते अम्मा अब तेरी मर्जी तू तैयार हो ना हो, घर वाली को कहते तेरी मर्जी तैयार हो ना हो, मैंने करबला जरूर जाना है। 2 दिन लग गए तैयारी में। माँ कहती है मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी, क्योंकि आया बड़ा मोजिज़ नुमा था, उसके पास जाना बड़ा जरूरी है। बीवी कहती है मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, मुझे भी आजाद ना कर, मैंने भी तेरे साथ जाना है, उस सरदार के पास पहुंचना है। शुरू किया 2 मुहर्रम को इन्होंने सफर। 10 मुहर्रम को डॉक्टर साहब सुबह सुबह ये करबला की सरजमीन पहुंचे, फौजों का जम गफीर देखा, मारो मारो की आवाजें, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली उम्मत, मारो मारो, काफी देर लगी इसको, आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गुजरते ये उस वक्त आया जब तेरा सरदार अकेला बैठ के हल में नासिर की सदा बुलंद कर। फौजियों को कहते हैं, पुलिस वाले फौजियों को कहते हैं मुझे रास्ता दो, मैंने आगे जाना है। कहा तुम कौन हो? कहा हम नसरानी हैं, ईसाई हैं। कहा 1 मिनट में पूछ के आता हूँ। जाना कहाँ है? नैनवा जाना है, करबला जाना है। उन्होंने कहा इसको गुजरने के लिए मैं पूछ के आता हूँ। गया चौकी इंचार्ज, वो इस तरह ईसाइयों का काफिला आया है, इजाजत मांग रहे, जाने दे। उसने कहा जल्दी कर जाने दे। हमारे नबी ने फरमाया गैर मुस्लिमों का एहतराम लाजिम किया कर। लानत है ऐसे मुसलमानों पर, मोहम्मद के खून को मारते रहे। मोहम्मद
کے خون کو مارتے رہے، غیر مسلم کو احترام کر راستہ بناؤ، قافلے کو روانہ کرو۔ راستہ بنایا، چھوٹا سا قافلہ چل پڑا، دیکھا سامنے ایک بیٹھا ہے، قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے، چور ہے زخموں سے، آواز دے رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ ماں آواز دے کے کہتی ہے وہاب، آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، جلدی کر پتہ کر وہ کون ہے۔ وہاب نے گھوڑا دوڑایا، گھوڑا روکا، نیچے اترا، پوچھتا ہے من انتا، آپ کون ہیں؟ قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں ازلی خوش نصیب وہاب آ گیا ہے، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری خوش نصیب اماں بھی آ گئی ہے، تیری خوش نصیب زوجہ بھی آ گئی ہے۔ سرکار میں ابھی آیا، دوڑا ماں کے پاس، ماں جس کو تلاش کر رہے تھے مل گیا ہے۔ ماں پر کیفیت بڑی عجیب ہے، ماں کلمہ گو نے ہمارا احترام کیا، اپنے محمد کے نواسے کو اتنا ماریں گے یہ؟ ماں مجھے دو نشانیاں سمجھ نہیں آتی۔ ماں نے کہا کیا؟ ماں تو نے کہا تھا جب یہ قافلہ گزر رہا تھا نا، ماں اس کے ساتھ جمع غفیر تھا، بڑا قافلہ تھا، خوبصورت خوبصورت جوان تھے، ماں اکیلا بیٹھے کوئی بھی نہیں۔ ماں کہتی ہے او مقتل میں نگاہ کر، ساروں کو اٹھا اٹھا کے تھک کے بیٹھا ہے، وہ ساری لاشیں رکھی ہیں۔ اماں دوسری نشانی تو نے بتائی تھی، اکیلا نہیں تھا ماں، ہم نے دیکھا اس کے ساتھ مستورات کا قافلہ بھی تھا۔ اماں مستورات کا قافلہ کوئی بھی نہیں، اماں کہتی ہے وہ سامنے دیکھ، خیام میں آواز آ رہی ہے میرا بھائی اکیلا بچ گیا، کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچا؟ آئے مختصر سردار کے پاس، آ کے پہلا جملہ کہا وہاب کی خوش نصیب اماں نے، آقا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت چاہیے۔ تیرے امام آواز دے کے کہتے ہیں تھکے ہوئے ہو، بڑا سفر کر کے آئے ہو، تم مستورات چلی جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ سلام ہے نصرانی عورت کو، امام کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ایسی صورت میں آپ کو دیکھ کر کوئی آرام کا سوچے اس پہ لعنت ہے، ہم آئے ہیں آپ کی نصرت کرنے۔ ملا اس نے جہاد، خوبصورت جنگ ہے جناب باپ کی، بس ایک جملہ سن اور اجازت اتنا ہی کافی، خوبصورت ترین جنگ ہے جناب باپ کی۔ لڑتے لڑتے کسی ظالم نے مارا، گرا جناب باپ، کاٹا سر باپ کا، کاٹ کے ظالم نے ماں کا دل دکھانے کے لیے سر پھینکا، ماں سر ہاتھ میں لیتی ہے، بڑا طویل واقعہ وہاب بن عبداللہ کلبی کا، سر ہاتھ میں لیتی ہے، آنکھوں سے ریت اور خون صاف کرتی ہے، ریت اور خون بھی صاف کرتی ہے، مسکراتی بھی ہے، جملہ ایک کہہ گئی ہے، سلام ہے اس ماں کو۔ ڈاکٹر صاحب جملہ رو کے کہتی ہے وہاب تیرا شکریہ، تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا، کم از کم میں سرخرو ہو کے کہوں گی ہم عیسائی ہو کے حسین کا ساتھ دیتے رہے۔